أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد الحمدللہ ہم پھر سے حاضر ہیں اپنے سلسلہ وار درس میں جو نحو سے متعلق ہم نے شروع کیا تھا، اور اب ہم صرف کے موضوع پر اپنے آپ کو تھوڑا سا فوکس کر رہے ہیں تاکہ صرف سے متعلقہ جو نالج ہمیں چاہیے وہ ہمیں حاصل ہو جائیں، اور تاکہ ہم نحو میں جو آگے جو مباحث آئیں گے، جو ٹاپکس آئیں گے، ان کو بہتر انداز سے ہم سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ یہی ہمارا پہلا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے صرف سیکھنے کا۔ اور پھر ظاہر ہے صرف کے اپنے فوائد ہیں، یعنی ورڈز کی پہچان، ان کو بنانے کے طریقے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ صرف میں موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ اس علم کو آپ حاصل کر کے نحو میں بھی آپ بخوبی کئی ساری چیزوں کو بہتر انداز سے سمجھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پچھلے درس میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے فعل ماضی سے متعلق جو ضمیریں تھیں ان کو ہم نے پڑھا تھا۔ مثال کے طور پر فعل ماضی میں اگر ہم فعلا، جو سب سے عام فعل ہوتا ہے، اس کو لیں تو اس میں کس طرح فعلا رہتا ہے، پھر اس میں جب غائب کے لیے کوئی ضمیر لگانی ہوتی ہے ہم الف الاثنین لگاتے ہیں، اور جماعت بتانے کے لیے واو الجماع لگاتے ہیں، اسی طرح ہم نون و نسوہ لگاتے ہیں فیمیل کے گروپ کو بتانے کے لیے، جماعت بتانے کے لیے۔ اسی طرح تعاون فاعل کتنے سارے صیغوں میں ایک ساتھ آتا ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا 7 صیغے تھے ٹوٹل، یہ 6 مخاطب کے صیغے اور ایک متکلم کا صیغہ، اس میں تا الفاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں آتا ہے، اور نا الفاعلین جو ہے جماعت والا جو نون الف ہے، جو جماعت یعنی متکلم کی جماعت کو بتاتا ہے، یہ صرف فاعلنا میں آتا ہے آخر پر۔ تو یہ ٹوٹل ہم نے 5 ضمیریں ہم نے پڑھی تھی، تا الفاعل، نا الفاعلین، الف الاثنین، واو الجماعہ اور نون النسوہ۔ تو ہم نے کیا کیا تھا، فعل ماضی ہم نے سب سے پہلے ثلاثی مجرد میں ایک بنا کر دیکھا تھا، جس طرح ہم نے کتبہ لیا تھا، تو کتبہ سے ہم نے یہ سارے صیغے بنائے تھے، اور پھر ہم نے مزید فی کے 2 باب سے سیم چیز کو کر کر ان سارے صیغوں کو تیار کیا تھا۔ تو اس طرح ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ بنانے کا طریقہ سب میں ایک ہی ہے، صرف جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، کبھی وہ ثلاثی مجرد کا صیغہ ہوتا ہے، کبھی وہ مزید فی کا ہوتا ہے۔ اور ہم نے کچھ اسائنمنٹس آپ لوگوں کو دیے تھے کہ آپ اس میں ضمیروں کو لگا کر اس کو تیار کریں، تاکہ ضمیر سے متعلق آپ کی ایک پریکٹس ہو جائے، آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اوریجنلی یہ صیغہ کس شکل میں ماضی میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب ضمیریں لگ جاتی ہیں تو یہ کیسا دکھتا ہے۔ تو ہم نے یہ اسائنمنٹ دیا تھا، کچھ لوگوں نے کیا ہے، کچھ لوگوں کا ابھی بھی آنا باقی ہے، واللہ عالم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے کوئز بھی دے دیا تھا۔ وہ کوئز اس لیے تھا کہ اگر آپ ان مراحل کو، ان سٹیجز کو پار کر لیں، یعنی کلاس کے ڈسکشن کو فالو کرنا، اور پھر ان اسائنمنٹس کو اپنے ہاتھ سے جب آپ کر لیں گے، تو پھر آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اس کوئز کو بھی آپ بڑے آرام سے اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا تھا کہ اس کوئز میں ان لوگوں نے زیادہ اچھا کیا ہے جنہوں نے اسائنمنٹ بھی کیا ہے۔ تو میرے یہ رائے ہے کہ جن لوگوں نے اسائنمنٹ کیا ہے انہیں وہ ٹیسٹ بہت آسان بھی لگا ہے، اور 60 سے 70% لوگوں کے فل مارکس ہی آئے ہیں، کیونکہ ٹیسٹ بہت آسان ہے، کچھ ہے نہیں اس میں، بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، لیکن وہ تب آسان ہے جب آپ خود اس کو ہاتھ سے حل کریں، ہاتھ سے اس کو سالو، جب آپ وہ اسائنمنٹس کریں گی یا کریں گے تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ صیغہ اس طرح بن کر دکھتا ہے۔ تو پھر وہ قرآن کی آیتیں جو میں نے کوئز میں ڈالی ہیں، وہ آپ کو عجیب یا غریب نہیں لگیں گے، ویئرڈ نہیں لگیں گے، کیونکہ آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ اچھا میں ان ضمیروں کو اگر ہٹا دوں تو یہ والا صیغہ ہے، یہ باب استفعال کا صیغہ ہے، یا باب تفاعل کا صیغہ ہے، کیونکہ آپ کو ضمیروں کو الگ کرنا ہے۔ جب آپ ضمیر کو الگ کر دیں گی یا کر دیں گی تو آپ کو بالکل واضح طور پر وہ فعل ماضی دکھنے لگے گا، لیکن جب آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس میں ضمیر کون سی لگی ہے اور اس کو ہٹانا کیسے ہے، تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس کو سمجھنا۔ تو اس وجہ سے وہ اسائنمنٹ اور وہ کوئز یہ اس ترتیب سے کرنا ہے کہ پہلے اسائنمنٹ اور پھر کوئز کرنا ہے۔ اگر آپ کوئز پہلے کرنے کی طرف جائیں گے تو آپ نے اگر پہلے پریکٹس نہیں کیا ہے تو آپ کو مشکل ہوگی، اور آپ کے نمبرز بھی پھر ٹھیک نہیں آئیں گے۔
ظاہر ہے کہ मैं टेस्ट अपने लिए नहीं ले रहा हूं, आप लोगों के लिए है वो, कि आप खुद असेस करें कि आपको कितना समझ में आया है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर असेसमेंट, मैं किसी को जज नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों का कोई सवाल है उस क्विज से मुतालिक, आपको लगता है कि किसी आंसर से आप मुतमईन नहीं है, आपको लगता है कि ये आंसर मुझे समझ में नहीं आया, आप बेशक पूछ सकते हैं, चाहे क्लास में हो या अभी आप चाहें तो भी पूछ सकते हैं। लेकिन बेटर है कि ग्रुप में पूछें, ताकि सबको फायदा हो इंशाल्लाह ताला। तो ये हमने फेल माजी से मुताल्लिक पिछले वीक किया था। आज हमारा मौजू है फेल मुजारे। फेल मुजारे और पैट और अम्र भी हम इसके साथ ही कर लेंगे, क्योंकि वो बड़ा छोटा सा है, तो इंशाल्लाह वो भी साथ करेंगे इंशाल्लाह। तो फेल मुजारे, जैसा कि आपको पता है, फेल मुजारे ये दलालत करता है आ, हाल और मुस्तकबिल की तरफ। मिसाल के तौर पर कतबा अगर हम कहें तो इसका माना होता है, ये फेल माजी है, इसका माना होता है उसने लिखा। और जब हम कहते हैं यक तुबू, तो ये किसकी तरफ इशारा होता है? इसका माना हो जाता है वो लिखता है या लिखेगा। आपको याद होगा कि फेल मुजारे को बनाने के लिए 4 लेटर्स होते हैं जिनको हुरूफुल मुजारा कहा जाता है। वो 4 लेटर्स कौन से आप लोगों को याद है, जिससे फेल मुजारे को तैयार किया जाता है फेल माजी से? वो 4 लेटर्स कौन से हैं? मैं जमीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमजा 4 नून लेटर्स की या बात। ता। हाँ, या तो उसको अतैना भी कहा जाता है, हरूफ अतैना, या फिर अनैतु इस फॉर्म में कहा जाता है, अनैतु या अतैना, अनैतु या अनैता। ये 4 लेटर्स है, यानी हमजा, नून, या और ता। इनको हर्फ हरूफ मुजारे के शुरू में लगाने से, सॉरी, हरूफ माजी के शुरू में लगाने से ये क्या बन जाते हैं? हरूफ मुजारे बन जाते हैं, यानी लफ्ज मुजारे तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पर कतबा अगर हम लें, कतबा, तो ये इसका माजी बनता है क त बा, ये 3 लेटर से। और इसका मुजारे क्या बनता है? यक तुबू। ठीक है, बाब नसरा से, बाब नसरा यानी फाला यफउलु, तो ये यक तुबू बनेगा, यक तुबू। तो ये हम जो देखते हैं ना कि इसमें ये जो या आकर लगता है, यही हर्फ मुजारे है। अब ये कभी ये या आकर लगता है इसके साथ किसी सूरत में, किसी सूरत में इसमें हमजा आकर लगता है अक्तुबु, और कभी इसमें नून आकर लगता है नक्तुबु, और कभी इसमें ता आकर लगता है तक्तुबु। तो अक्तुबु, नक्तुबु, यक्तुबु, तक्तुबु, ये सारे, ये 4 लेटर्स जो हैं अनैतु के, इनसे बनते हैं फेल मुजारे में। इंशाल्लाह भी हम इसको सारा करेंगे। बस मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ जो हमने पिछले कुछ दुरूस में पहले पढ़ा था, वो थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। ठीक है, ये अनैतु लेटर्स के जरिए से हम माजी से मुजारे में कन्वर्ट करते हैं। और ये अनैतु लेटर्स में से कब हमजा आएगा, कब ये नून शुरू में आएगा, कब ये या शुरू में आएगा, और कब ये ता शुरू में आएगा, ये अब इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर इसके साथ जो जमीरें हैं वो कौन कौन सी आखिर में आएंगी, वो भी हम साथ देखेंगे। तो 2 चीजों पर हमारा फेल मुजारे में फोकस होगा। नंबर 1 कि अनैतु लेटर्स में से शुरू में हमें कौन सा लेटर लगाना है, और दूसरा ये 4 जमीरें जो हम कह रहे हैं कि फेल मुजारे में इस्तेमाल होंगी, और मैं इनका तारुफ आपको साथ साथ कराऊंगा, इनको कैसे उन पैटर्न्स के साथ यूज करना है इंशाल्लाह। तो ये 2 चीजें हमें साथ साथ लेकर चलनी है कि कब हमें अनैतो लेटर्स को लगाना है, और कब हमें उनके साथ इन 4 जमीरों में से किसी जमीर को लगाना है। इन 2 चीजों के जरिए से हम किसी भी फेल मुजारे को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने जिस तरह सबसे पहले जब स्टार्ट किया था, तो हमने फाअला एक जनरल फेल माजी लिया था। अब हम एक जनरल फेल मुजारे इससे बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स अज्यूम कि हम अनैतु लेटर्स में से या को ले रहे हैं। ठीक है, या को ले रहे हैं, और फा आइन नाम को इसके साथ, सॉरी, फा आइन नाम को इसके साथ इस तरह लिख रहे हैं, यफ। और हमने कहा था ना कि जो मुजारे बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले अनैतो लेटर्स में से एक लेटर को शुरू में लगाते हैं, और लास्ट वाले हर्फ को पेश लगाते हैं मुजारे तैयार करने के लिए। फाला से जब मुझे मुजारे बनाना है, तो मैं फा आइन नाम को लिखूंगा, इसके शुरू में अनैतो लेटर्स में से किसी लेटर को लगाऊंगा, और लास्ट हर्फ को क्या कर दूंगा,
पेश कर दूंगा, पेश यफ़अलु। दे देंगे, जी, और फा को साकिन कर देना है, फा को साकिन कर देना साकिन कर जी, देना है। तो ये यफ, साकिन कर अब देना। हाँ, अब इसमें अलू कभी आ सकता है, कभी इलू आ सकता है और कभी उलू आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से सुलासी मुजर्रद के बाब से हम लेकर आ रहे हैं। बाब नसरा से लाएंगे तो यफउलु होगा, है ना। कभी अगर बाब हसीबा से लाएंगे तो यहसिबु यफइलु हो सकता है, या फिर यदरिबु इस तरह हो सकता है। कभी वो यकरुमु भी हो सकता है ना, या फिर यफ्तहु भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। लेट्स अज्यूम कि हम अभी सबसे आसान जो है जबर, इसको लेके चलते हैं। फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, तो हमने या को लगाया है, या हर्फ मुजारे को, यानी ये वाला हर्फ मुजारे यानी टू लेटर्स में से इसको लगाने से पहला सीगा तैयार होता है। ये आप समझ लें कि फ़अला से फेल माजी का पहला सीगा अगर लेकर इसमें या नहीं तो लेटर्स में से लगाएं और लाम पर पेश दे दें, तो ये पहला सीगा बनता है फेल इसका मुजारे का। तो ये गायब का जो सीगा है ना, गायब का सीगा, ये इसी से बनता है। यफ आलू देखें, गायब का सीगा वाहिद मुजक्कर के लिए, ठीक है, ये मुजक्कर है, ये लाइन मुजक्कर के लिए है, ये लाइन मुअन्नस के लिए है। इसी तरह मुखातब जिससे मैं बात कर रहा हूं, उसमें ये मुजक्कर के लिए और ये मुअन्नस के लिए। और मुतकल्लिम में फर्क नहीं होता जेंडर का, ये आपको याद होगा। तो यहां तक पहले बात क्लियर है कि फाला से हमने मुजारे कैसे बनाया, यफअलु कैसे बनाया हमने, फाला से यफअलु कैसे बनाया, एक जनरल हमने बनाया है। यानी हर्फ मुजारा या को लगाकर हमने पहला सीगा तैयार किया यफअलु, और हमने आइन पर जबर को अज्यूम कर लिया है, क्योंकि अभी हम किसी बाब को फोकस नहीं कर रहे। बाब, नसरा, फतहा, समया, ये सब अभी हम फोकस नहीं कर रहे। हम अभी सिर्फ कोई एक इस पे हरकत देकर प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है तो मुझे बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। बाकियों के लिए भी क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके, शुक्रन। अच्छा, अब अब सेम पैटर्न से जैसे हमने फेल माजी को पढ़ा था, अब हम मुजारे को पढ़ेंगे। तो पहला ये मुजक्कर का सीगा है यफअलु। अब हमें ये क्या, यफअलु यानी वो करता है। अगर हम सिंपल तर्जुमा करें, वो करता है, ये कर या करेगा, यानी हाल या मुस्तकबिल का इसका तर्जुमा होगा फेल मुजारे का। अब इसी को हमें कहना है कि दो शख्स ये काम करेंगे या करते हैं, ठीक है। वो दो मुजक्कर ये काम करते हैं या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो को बताना है, तो हम इसमें अब ये जमीरें चार है हमारे पास। अली अलिफुल जी। इस्नैन जो दो को बताता है, वावुल जमा जो जमात में मुजक्कर को बताता है, नूनुन निस्वा जो जमात में मुअन्नस को बताता है, और याउल मुखातबा जो एक मुअन्नस को मुखातब जिसको किया जा रहा है, जिससे बात की जा रही है, उसको बताता है। जी, तो इसमें कौन सा आएगा, कौन सी जमीर अलिफ आएगी? हुस्नैन। अलिफुल इस्नैन, क्योंकि हमें दो लोगों का बताना है, तो दो लोगों के लिए जो जमीर इस्तेमाल होती है वो अलिफुल इस्नैन है, ठीक है। तो यफ आलू से ये यफ आला हो गया। लेकिन मसला क्या होता है कि मुजारे को मैंने बताया ना, मुजारे को हमेशा पेश चाहिए। मुजारे को हमेशा आखिर पर क्या चाहिए, पेश चाहिए। तो चूंकि इस पर अलिफ लगाने से ये लाम को हर सूरत जबर लेनी होगी। यफ आला हमने जब कर दिया तो ये हर सूरत, अब इसको लाम पर तो हम पेश नहीं दे सकते ना। पहले तो ये पेश था, लेकिन जब इसके आखिर पर अलिफ लगा दिया हमने दो को बताने के लिए, तो अब ये इसकी पेश की सूरत चली गई। तो इसको अब एक कोई चीज चाहिए होती है जिसके जरिए से ये अपने पेश वाली हालत को बता सके कि मैं अभी भी पेश ही हूं। तो इसके लिए एक आता है नून एराबी जो कसरा की हालत में होता है। एराब वाला नून जो कसरा की हालत में इसके आखिर पर लगाया जाता है, किस लिए? ताकि ये बताया जा सके कि मैं अभी भी पेश की हालत पर ही हूं, मैं अभी भी पेश की हालत पर ही हूं। पेश यानी की हालत में हूँ। हाँ, यानी अगरचे मेरी सूरत यफ आला हो गई है, लेकिन मैं अभी भी पेश वाली हालत में ही हूं, नून कसरा के साथ, ठीक है। इसको नून एराबी कहते हैं, नून एराब वाला नून, अभी आप इस तरह कह लें, ठीक है। एराब वाला नून, एराब यानी जो रफा की हालत को बता रहा है, जो उसके स्टेटस को बता रहा है कि वो अभी भी पेश की हालत में है। यानी ये पेश का बदल है, यानी ये पेश की सूरत की पोजीशन पर नून को लगाया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये एराब का बहुत अहम मौजू है। जब हम इंशाल्लाह जब हम नहव में अगला जो टॉपिक होगा हमारा सर्फ के बाद,
اس میں سب سے پہلا موضوع اعراب شروع ہوگا. اعراب میں ان کانسیپٹس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کب پیش جو ہے وہ نون سے ریپرزینٹ ہوتا ہے. یعنی اس میں آپ کو یہ سوال ہوگا کہ کن جگہوں پر پیش کو نون سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, تو آپ یہی بتائیں گی کہ ان ساری جگہوں میں جہاں فعل مضارع میں یہ نون آتا ہے نا, یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر پیش نہیں آتا بلکہ نون آتا ہے اور وہ پیش کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کیوں نون لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پیش کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی جی ٹھیک ہے الحمدللہ. جی. اگلا, اچھا یہاں پہ سرخ ہو گیا, سرخی رکھتا ہوں. اچھا اگلا کرتے ہیں پھر سے. اب یفعلو, ٹھیک ہے, یفعلو. اب مجھے کہنا ہے کہ وہ سارے کرتے ہیں یا کریں گے, تو میں کون سی ضمیر لاؤں گا؟ یعنی ایک مردوں کی جماعت ہے نا, یا میل جینڈر کی جماعت ہے جس کو مجھے بتانا ہے. واو جماعت کو لائیں گے. واو جماعت جب ہم لائیں گے تو یہ یہاں پر واو اس کے ساتھ لگ گیا, یہ واو. اب یہ واو تو پیش کے ساتھ ہی جاتا ہے, مجھے کچھ نہیں کرنا ہے. یعنی پہلے تو مجھے لام پر جو زبر تھا, سوری پیش تھا, اس کو زبر کرنا پڑا تھا نا الف کی وجہ سے. یہاں پر تو میں واو کو ہی لگا رہا ہوں, تو میں کیا کروں گا, لام پر پیش ہی رہنے دوں گا, کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ واو کے ساتھ ہی جا رہا ہے نا یہ یفعلو اور واو. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر کچھ نہیں کرنا ہے. لیکن پھر مسئلہ کیا ہوا کہ آخری لیٹر جو تھا پہلے اس پر پیش موجود تھا, اس میں وہ پوزیشن چلی گئی تھی آخری لیٹر کی, تو اس میں بھی سیم صورت حال ہوئی ہے. جو آخری لیٹر ہے وہ اب میرا پیش نہیں ہے, رائٹ. آخری لیٹر جو ہے یفعلو میں جیسے آخری لیٹر پر پیش تھا نا, جو یہ بتا رہا تھا کہ یہ پیش کی حالت میں, وہ سیم پوزیشن یہاں پر بھی ہوئی تھی کہ آخری لیٹر جو تھا وہ الف بن گیا تھا. تو یہاں پہ پرابلم آ گئی تھی جس وجہ سے ہم نون کسرہ والا لے کر آئے تھے. یہاں پر بھی سیم پوزیشن ہو گئی ہے. آخری لیٹر جو ہے وہ واو ہے, اور واو پر کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ جزم نہیں کہہ سکتے, سکون ہے. واو سکون ہے, ٹھیک ہے, ہاں سکون ہے. جزم کہہ سکتے ہیں لیکن سکون زیادہ بہتر ہے یہاں پر کہنا. ٹھیک ہے, سکون ہے, یعنی اس پر کوئی حرکت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ پیش والی حالت چلی گئی اس کی, یعنی آخری لیٹر پر پیش ہونا تھا لیکن وہ حالت چلی گئی. تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا, نون اعرابی لگانا پڑے گا. نون اعراب والا لگانا ہوگا, لیکن اس بار زبر لگے گی. ٹھیک ہے, یا عربوں نے اسی طرح اس کو اختیار کیا ہے, یعنی نون لگایا ہے لیکن یفعلونی نہیں کہا بلکہ یفعلونا کہا ہے. اور پچھلے والے میں یفعلانا نہیں نہ کہہ کر یفعلانی کہا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ آنی اور اونا, آنی اور اونا اس طرح ورڈ یوز کرتے ہیں. یفعلانی, یفعلونا, آنی اور اونا, یفعلانی, یفعلونا. ٹھیک ہے, یاد رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی نون اعراب والا لگا ہے. اچھا اب اگلا آ جاتے ہیں. اگلا ہے, اب انہیں ایک ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. اس سے پہلے والا کیا تھا, وہ ایک مرد یا مذکر کرتا ہے یا کرے گا. اب ہے وہ ایک مؤنث, ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. تو اس کے لیے ان کو فرق کو واضح کرنے کے لیے عربوں نے کیا استعمال کیا, پہلے میں یا تھا حرف مضارع, اب اس میں وہ تا لے کر آئے ہیں. شروع میں تا, تفعل, تفعلو یعنی وہ کرتی ہے یا کرے گی, وہ کرتی ہے یا کرے گی. ٹھیک ہے, تو عربوں نے اس تا کو یوز کیا ہے, یہ والا جو تا تھا انیتو لیٹر میں, اس کو یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر دو کو بتانے کے لیے سیم چیزیں ہوں گی. تفعلانی, جیسے کہ دو مذکر کے لیے یفعلانی, دو مؤنث کے لیے تفعلانی. تفعلانی. ٹھیک ہے, اچھا اب مجھے کہنا ہے وہ ساری عورتوں نے کیا یا کرتی ہیں, نہیں کیا نہیں, وہ ساری عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. ٹھیک ہے, یعنی اب جماعت کی صورت ہے لیکن مؤنث کے لیے.
अब यहां पर वो क्या करते हैं, यहां पर वो तफअलू के पैटर्न को यूज नहीं करते, क्योंकि उनके पास एक जमीर मौजूद है नून निस्वा। उस नून निस्वा को यानी औरतों वाली जमात को वो आखिर पर लगाते हैं इस तरह, ठीक है, और इस्लाम को साकिन कर देते हैं, इस्लाम को साकिन कर देते हैं। तो ये बन जाता है यफअलना, यफअलना, ठीक है, यफअलना। इसका बड़ा हो गया जी, यफअलना, ठीक है, यफअलना। क्यों यहां पर वो तफअलना नहीं कहते, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है। ये ता की जरूरत तब थी जब तक हमें ये बताना था कि ये फीमेल है, लेकिन जब उनके पास नून निस्वा वाला अगर मौजूद है तो वो उसी को इस्तेमाल करते हैं, वो उसी को यफअलू के साथ इस्तेमाल करके यफअलना बना देते हैं, ठीक है। यानी यहां पर इसको ता बनाने की जरूरत नहीं है, ता बनाने की तब जरूरत थी जब हमें एक के लिए बताना था, एक के लिए, क्योंकि एक के लिए, एक मुअन्नस के लिए हमारे पास कोई जमीर नहीं थी गायब के लिए, ठीक है। इसी तरह दो के लिए जो जमीर थी वो अलिफुल इस्नैन थी, तो वो उसको उन्होंने यूज किया, और फीमेल बताने के लिए इस ता को यहां पर रहने दिया, ठीक है। अलिफुल इस्नैन सिर्फ दो को बताता है, यानी टू पीपल, वो जेंडर नहीं बताता है। लेकिन ये जो ता है ये जेंडर बताता है, ये जेंडर कौन सा है, फीमेल का है। लेकिन यफअलना में ये दोनों चीजें, यानी कितने लोग हैं और उनका जेंडर क्या है, ये दोनों पर्पस नून निस्वा से सॉल्व हो जा रहा है। क्लियर हो, मेरी बात क्लियर है आप लोगों के लिए, वाजे है? जी जी सर। तो इस वजह से इसको वो यफअलना लिखते हैं, यफअलना, ठीक है, यफअलना। अच्छा, अगला, अगला अब मुझे कहना है तुम करते हो या करोगे, मुखातब, ठीक है, मुजक्कर, मुखातब मुजक्कर, तुम करते हो या करोगे। इसके लिए भी अरबों के यहाँ, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये बड़ा अजीब सा उनका मामला है कि वो ता को ही इस्तेमाल करते हैं। तफअलू जो है वो मुअन्नस गायब के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो करती है या करेगी, और तफअलू मुखातब मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, तुम करते हो या करोगे। लेकिन हमें समझ कैसे आएगा, कॉन्टेक्स्ट से समझ में आएगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल इंशाल्लाह अभी दिखाऊंगा, उससे इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह मैं भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये समझे, तफअलू यानी वो करता है या तुम करते हो या करोगे, ठीक है। इसी तरह तुम दोनों करते हो या करोगे, इसके लिए कौन सा इस्तेमाल होगा, सेम पैटर्न, तफअलानी, फलानी। तुम दोनों करते हो या करोगे। अब तफअलू को मैं यहां पर मैंने डाला, और अब मुझे कहना है कि तुम सारे मुजक्कर करते हो या करोगे, तो मैं वावुल जमा को लगाऊंगा, और पोजीशन चले जाने की वजह से मैं नून एराब वाला आखिर में लगाऊंगा। तो ये तफअलू, तफअलानी, तफअलूना, तुम सारे करते हो या करोगे। इसको मैं यफअलूना नहीं लिख सकता, वरना ये वाले सिचुएशन के साथ मिक्स हो जाएगा, तो इसी वजह से मैं तफअलूना कह रहा हूं, ठीक है। तफअलूना, तुम सारे करते हो या करोगे, और यफअलूना वो सारे करते हैं या करेंगे। ये गायब के लिए है, और ये मुखातब के लिए है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जी अब जी। अब मुअन्नस के लिए कि तुम करती हो या करोगी, इसके लिए हम तफअलू तो लिखेंगे, लेकिन अब हमें यह बताना है कि ये फीमेल है। हमारे पास अभी कांस्टेंट है ना, तफअलू यानी तुम करते हो, तुम एक मुजक्कर करते हो। मैं तफअलू को तुम एक मुअन्नस करती हो कैसे इस्तेमाल करूंगा, तो इसके लिए वो कौन सी जमीर इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी आखिरी जमीर है बची हुई, याउल मुखातबा, यानी जिस मुअन्नस को मुखातब किया जा रहा है। हाँ, पैटर्न सेम है ना, गायब और मुखातब में सेम है ना, मैं इंशाल्लाह भी दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ताहिरा, जस्ट वेट। हाँ, अच्छा, तफअलू ये तो मुजक्कर के लिए था। अब मुअन्नस के लिए मुझे, मैं जब लाऊंगा तो मैं क्या लेकर आऊंगा, याउल मुखातबा, एक या यहां पर मैं लिखूंगा, या, ठीक है, या। इसका ना मैं वो चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखे। कौन सा वाला यूज किया था,
चले अभी ये वाला यूज कर लेते हैं, इससे वाज़ेह रहेगा। चले, तो मैंने क्या लगाया, मैंने जमीर या की लगाई आखिर में, है ना। ये या क्या है, जमीर जो मुखातबा मुखातबा कह रहा हूं मैं, यानी औरत मुअन्नस, इसको मैं लगा रहा हूं आखिर में। तो चूंकि मैं इसको या लगा रहा हूं तो ये लाम पर जो पेश है, अब ये पेश नहीं रह सकता, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैंने या, हाँ कसरा हो जाएगा जी, कसरा हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अब ये तफआ ली हो गया है। और फिर इसमें क्या मसला हो जाएगा, फिर इसकी पोजीशन चली गई आखिरी लेटर की पेश वाली, तो मैं नून नून जबर वाला, अराबी। हाँ नून अराब इस तरह लगाऊंगा, तो ये तफअलीना, 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 तुम एक मुअन्नस करती हो, तुम एक मुअन्नस करती हो या करोगी। फिर तुम दो मुअन्नस करते हो या करोगे के लिए भी सेम यूज होता है जो मुजक्कर के लिए है, ठीक है, सेम यूज होता है, तुम दोनों मुअन्नस या मुजक्कर करते हो या करोगे, तफआलानी। और तुम सारी मुअन्नसें करती हो या करोगी, इसमें यहां पर तो ये तफअलू, तुम के लिए तफअलू, और ये नून और निस्वा, ये दोनों काम कर दे रहा है। नून और निस्वा ये भी बता रहा है कि ये जेंडर मुअन्नस है, और ये जमात के लिए है। तफअलना, ये यफअलना था, यानी वो सारी मुअन्नसें करती हैं या करेंगी, ये है तफअलना, तुम सारी मुअन्नसें करती हो या करोगी। क्लियर है, तुम सारी जी मुअन्नसें जी। करती हो या करोगी। अच्छा, तो हमने इसको तफअलू ही रहने दिया, लेकिन लास्ट पर नून और निस्वा को लगा दिया। वेरी गुड। अब बच जाता है मैं करता हूं या करूंगा, मुतकल्लिम। तो इसके लिए मैंने बताया था कि अनैतो लेटर्स में से हमने कौन कौन सा भी यूज कर लिया है, या को यूज कर लिया है और ता को यूज कर लिया है, करेक्ट। अनैतो लेटर्स में से ये जो चार अनैतो लेटर्स थे, इसमें से हमने जी जी। या को यूज किया है और ता को यूज किया है, दो बच गए हैं, हमजा और नून। अब ये दोनों यहीं पर काम आएंगे मुतकल्लिम के लिए। मैं करता हूं या करूंगा, इसके लिए अफ़अलु, अफ़अलु, मैं करता हूं या करूंगा। और हम करते हैं या करेंगे के लिए क्या आएगा, नून जो था ना, अनैतो लेटर में जो नफ़अलु। नून था, हाँ वो आएगा, नफ़अलु, हम करते हैं या करेंगे, हम करते हैं या करेंगे। वाज़ेह है, क्लियर है यहां तक। यानी यफ़अलु वो अल्हम्दुलिल्लाह। करता है या करेगा, यफ़अलानी वो दोनों करते हैं या करेंगे, यफ़अलूना वो सारे मुज़क्कर करते हैं या करेंगे, तफ़अलु वो एक मुअन्नस करती हैं या करेंगी, तफ़अलानी वो दोनों मुअन्नसें करती हैं या करेंगी, यफ़अलना वो सारी मुअन्नसें करती हैं या करेंगी, तफ़अलु तुम एक मुज़क्कर करते हो या करोगे, तफ़अलानी तुम दोनों मुज़क्कर करते हो या करोगे, तफ़अलूना तुम सारे मुज़क्कर करते हो या करोगे, तफ़अलीना तुम सारी मुअन्नसें करती हो या करोगी, तफ़अलानी तुम दोनों मुअन्नसें करती हो या करोगी, तफ़अलना तुम सारी मुअन्नसें करती हो या करोगी, अफ़अलु मैं करता हूं या करूंगा, नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। तो इस तरह ये बनता है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं, जब हमें ये समझ में आ गया, हमने कतबा किया था ना फेल माजी में, फेल माजी में हमने क्या किया था, कतबा, ये देखिए कतबा, और हमने कहा था बाब नसरा से। तो कतबा से जो हम पहला सीगा बनाएंगे मुजारे का, वो कौन सा बनेगा, कतबा, बाब नसरा से क्या यक बनेगा, यक्तबु। यक्तबु। य- यक तुबु। यकतुबु, बाब नसरा से, बाब नसरा से नसरा यंसुरु, कतबा यक यक्तुबु। यकतुबु, यकतुबु इस तरह बनेगा इसका पहला सीगा। तो अगला सीगा बताएं, ये मुजक्कर का, गायब का और मुसन्ना, यानी दो लोगों के लिए क्या बनेगा, यक यक्तुबानी। यक्तबानी। यकतुबानी, वेरी गुड, यकतुबानी, यफअलानी से यकतुबानी। अच्छा, और यक हाँ जमा के लिए यक्तबूना। यक्तुबूना। यकतुबूना, बूना, ठीक है। किसी के लिए अगर वाजे ना हो तो पूछ सकते हैं कि ये कैसे बना, ठीक है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। जैसे हमने यहां पर बनाया है, यफअलु, यफअलानी, यफअलूना, ठीक है, यफअलूना। अब अगला क्या बनेगा, तफअलु, तफअलानी, यफअलना, तफअलु, यफ़अलु। तफअलानी, यफअलना,
ठीक है। यफ़अलना हाँ, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, तख्तुबु, तख्तुबु, तुबु जी, तक, तक्तुबानी जी, तख्तुबानी तख्तुबानी, ठीक है, तख्तुबानी और यख्तुबना। हाँ, अब यख्तुबूना वापस या आ यख्तुबना जाएगा, यहाँ पर ता नहीं कहेंगे, यख्तुबना कहेंगे, यख्तुबना, ना यख्तुबना, ठीक है। अच्छा, अब मुखातब, मुखातब को भी देख लेते हैं। मुखातब हमारा क्या था, ये सारे थे। फिर से तख्तुबु, तख्तुबानी, तख्तुबूना, ठीक है। फिर तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं इंशाल्लाह। मुखातब यानी तुम लिखते हो या लिखोगे, तख्तुबु, तक्तुबु ठीक है, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, तक्तुबानी तख्तुबानी, बानी सॉरी, तख्तुबानी, ठीक है। और जमा के लिए तुम सब लिखते तख्तुबूना हो, तक्तुबून तख्तुबूना, वेरी गुड, वेरी गुड, तख्तुबूना तख्तुबूना, ना ठीक है, तख्तुबूना। अब मुअन्नस के लिए तुम एक मुअन्नस लिखती हो या लिखोगी, ये क्या होगा, तक तू तक्तुबीना बीना, तख्तुबीना तक तू बीना, तक तू बीना, बीना तख्तुबीना। और तुम दोनों मुअन्नस से लिखती हो या लिखोगी, सेम, तख्तुबानी। तख्तुबानी से और तुम सारी मुअन्नस से लिखती हो या लिखोगी, तक तक्तुबना तुबना, तख्तुबना तक तुबना। हाँ, स्टार्ट ता से ही होगा, तक तुबना, इसमें नून निस्वा जमीर आएगी। और मैं लिखता हूं या लिखूंगा, अक्तुबना अक्तुबु, अक्तुबु, अक्तुबु यक्तुबु, अक्तुबु। अक्तुबु और हम लिखते हैं या लिखेंगे, नक्तुबु नख्तुबु नक्तुबु, नक, तुबु ठीक है, हम लिखते हैं या लिखेंगे नक्तुबु। अच्छा, तो ये एक चीज आपके लिए वाज़ेह हो गई कि किस तरह बनता है, ठीक है। अब एक सवाल जो था कि ये हमें कैसे समझ में आएगा कि कब कौन सा, जैसे ये वाला था ना, ये दोनों कंफ्यूजिंग है कि तख्तुबु और तख्तुबु दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो मिसाल के तौर पर आप कहीं कुछ पढ़ रहे हैं और आपके सामने है कि आ, इस तरह लिखा है, मिसाल के तौर पर, गौर से इस सेंटेंस को देखिएगा, मेरे साथ समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, أنت يوسف हम्म أتكتب الدرس हम्म अंत यूसुफ हो, इसका क्या माना होता है, अंत यूसुफ, तुम यूसुफ हो तुम यूसुफ हो। अंत यानी तुम, जमीर है ये, अंत यूसुफ, तुम यूसुफ हो। अतक्तुबु दर्स, अतक्तुबु दर्स, क्या तुम दर्स ले रहे हो या लिख रहे हो, लिख रहे कतबा हो लिखना, अतक्तुबु दर्स, क्या तुम दर्स लिख रहे हो। यानी आपने यहाँ पर तक्तुबु का क्या माना किया, मुखातब वाला माना किया कि तुम जी दर्स लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ठीक है। इसका इसका आप मेरे साथ पढ़ें, हिया जैनब, इसका क्या तर्जुमा होगा, वो हिया जैनब है वो वो जैनब है। है यानी आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, हिया जैनब। और फिर इसके बाद क्या लिखा है, वहिया वही तक्तुबु दर्स, दरसा इसका क्या तर्जुमा होगा, और वो और वो दर्स लिख रही है माशाअल्लाह,
तो क्या मुझे बताना पड़ा कि यहाँ पर तख्तुबू का